भगवद गीता का अध्याय 8 श्लोक 21 से 28 तक। इत्युक्तस्तमाहो परमागतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभेस्त्वमेया यस्यातस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं का वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निज्योतिर्ह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रित्था कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रं सम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवृत्ते शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यातिनावृत्तिमियावर्ते पुनः नैते स्मृति पार्थ जानन्योगी मोहेति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलप्रदिष्टम् अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी पर स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षब्रह्मयोगो Bhagavad Gita, Chapter 8, verses from 21 to 28. The same and manifest which has been spoken of as the indestructible, is also called the supreme goal. That again is my supreme abode, attaining which they return not to this mortal world. Arjuna, that eternal and manifest supreme Purana in whom all beings reside and by whom all this is pervaded, is attainable only through exclusive devotion. Arjuna, I shall now tell you the time, path, departing when yogis do not return, and also the time, path, departing when they do return. Of the two paths, the one is that in which are stationed the all-effulgent fire god and the deities presiding over daylight, the bright fortnight, and the 6 months of the northward course of the sun respectively, proceeding along it after death yogis, who have known Brahma, being successively led by the above gods, finally reach Brahma. The other path is that wherein are stationed the gods presiding over smoke, night, the dark fortnight, and the 6 months of the southward course of the sun. The yogi, devoted to action with an interested motive, taking to this path after death is led by the above gods, one after another, and attaining the luster of the moon, and enjoying the fruit of his meritorious deeds in heaven, returns to this mortal world. For these two paths of the world, the bright and the dark, are considered to be eternal. Preceding by one of them, one reaches the supreme state from which there is no return, and preceding by the other, one returns to the mortal world, i.e., becomes subject to birth and death once more. Knowing thus the secret of these two paths, O son of Kunti, no yogi gets deluded. Therefore, Arjuna, at all times be steadfast in yoga in the form of equanimity, i.e., strive constantly for my realization. The yogi, realizing this profound truth, doubtless transcends all the rewards enumerated for the study of the Vedas as well as for the performance of sacrifices, austerities and charities, and attains the supreme and primal state. Thus, in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Shri Krishna and Arjuna, ends the 8th chapter entitled, The Yoga of the Indestructible Brahma. जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परमगति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकौम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ अध्याय 8 समाप्त होता है। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।